So a very welcome to all of you once again. Now today we are going to move on to the next type. In type 2 itself, type 2D. ठीक है, heading लिख लीजिए आप. Now what we are supposed to do in this type, so procedure मैंने short में लिखा है. First we have to use sin of a plus minus b और cos of a plus minus b का formula use करना है. Then property of inverse function use करना है. और जब function simplify हो जाएगा तो फिर हमें उसको differentiate करना है. Heading of the question remains the same. Differentiate the following with respect to x. And unit 3 का question number 11 है. Now, if this question is asked, students, it's going to carry 3 marks in board exam. Okay, and it's a very important question. ऐसे questions आते हैं exam. चलिए, so let us move on to the solution for the problem. Solution. Now, let us consider this as y. तो लिखिए आप, let y is equal to cos inverse of. Okay, now what we do, we split up the denominator and write down the next step. So this will be written as 3 by root 13 into cos of e raised to x. Okay, ये cos of e raised to x है. Plus this will be written as 2 by root 13 into sin of e raised to x. And close the square bracket. Whichever type of bracket you put up, doesn't matter. तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, लेट y इज इक्वल टू लिखा जो ओरिजिनल प्रोसीजर है, एंड वी हैव स्प्लिट अप द डिनोमिनेटर इन दिस. ओके, सो दिस इज आवर वेरी फर्स्ट स्टेप स्टूडेंट. ओके, नाउ व्हाट इज टू बी डन, ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी नीड टू कन्वर्ट द प्रॉब्लम. ये जो ब्रैकेट है ना, उसको हमें साइन ऑफ ए प्लस माइनस बी या तो फिर कॉस ऑफ ए प्लस माइनस बी में कन्वर्ट करना होता है. वो प्रोसीजर है. अभी देखो यहाँ पे कॉस इनवर्स है. Now since बाहर ये cos inverse function है, we will prefer making this bracket in terms in form of cos of a plus b के फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि यहाँ पे cos inverse है. ओके, चलो, तो what we do for that we will have to do some assumptions. हमें लेट करना पड़ेगा. तो आप लिखो ऐसा, write down, put, ऐसा आप लिखो, put 3 by root 13 is equal to cos alpha. Put लिखो या let लिखोगे तो भी चलेगा. Let 3 by root 13 be equal to cos alpha and 2 by root 13 let it be equal to sin alpha. तो आप let भी लिख सकते हो यहाँ पे. अगर आपको put नहीं लिखना है तो you can write down let also. मीन्स हम एजम्पशन कर रहे हैं कि 3 by root 13 को हम cos अल्फा लेके चल रहे हैं और 2 by root 13 को हम sin अल्फा लेके चल रहे हैं. नाउ सिंस वी आर एज्यूमिंग, वी नो दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा शुड बी इक्वल टू 1. फंडामेंटल आइडेंटिटी सैटिस्फाई होना चाहिए और वो कंपलसरी है. So we'll have to show that step in exam. Okay, so write down now sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा. अब डायरेक्ट इक्वल टू 1 नहीं लिखने आप, आप नहीं लिखेंगे ऐसा. तो साइन स्क्वायर अल्फा, तो इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो दैट विल बी नथिंग बट 4 by 13 प्लस cos स्क्वायर अल्फा मीन्स इसका स्क्वायर, तो दैट्स नथिंग बट 9 by 13. तो अल्टीमेटली इट इज नथिंग बट 13 by 13 एंड दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 1. ये स्टेप मैंडेटरी है. You need to show that sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. हमेशा आएगा, but it's a kind of formality that we'll have to do it. So 3 by root 13 को cos alpha लिया, 2 by root 13 को हमने sin alpha लिया. Now let us find out tan alpha from here. Therefore tan alpha. Now as we all know, tan alpha is nothing but sin alpha upon cos alpha. तो साइन अल्फा अपॉन कॉस अल्फा करेंगे तो tan अल्फा का वैल्यू क्या आएगा, तो इट विल बी नथिंग बट 2 by 3 एंड देयरफॉर द एंगल अल्फा विल बी tan इनवर्स ऑफ 2 by 3 and put a box over this angle alpha. Always remember, when you are solving these kind of problems, generally don't take this as cos theta sin theta. उसका रीजन है क्योंकि हम आगे
जो नेक्स्ट टाइप करने वाले हैं ना उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करने वाले हैं, तो थीटा आप मत लिखो इसको, we take it as cos alpha and sin alpha, we don't take it as theta। मतलब रॉन्ग नहीं है अगर आप थीटा लोगे तो, बट अवॉइड करो ये प्रोसीजर। हमें हर एक प्रॉब्लम में ऐसे जितने भी टाइप ऑफ एग्जांपल्स है, दिस सेम प्रोसीजर इज टू बी फॉलोड इन एवरी एग्जांपल, प्लीज डू रिमेंबर दैट। ओके, so now what we do, 3 by root 13 will be replaced by cos alpha and 2 by root 13 will be replaced by sin alpha in the question. So read on next step, therefore y is equal to cos inverse is already present, 3 by root 13 will be replaced by cos alpha into cos of e raised to x will remain same। ठीक है, 1 second, cos of e raised to x will remain same plus 2 by root 13 will be replaced by sin alpha into sin of e raised to x will remain same, close the bracket। अभी इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं, तो राइट डाउन देयरफॉर y is further equal to cos inverse of, right on, this will be written as cos of e raised to x into cos alpha plus sin of e raised to x into sin alpha and close the bracket। कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने रीअरेंज कर लिया टर्म्स को। तो नाउ यू ऑब्जर्व इनसाइड द ब्रैकेट cos इनवर्स, और ये जो पूरा ब्रैकेट है, this itself is a formula for nothing but cos of a minus b, cos a cos b plus sin a sin b is nothing but cos of a minus b होता है। So this is going to become cos of e raised to x minus alpha। This is what is going to happen। So that is what the rule says। देखो रूल क्या बोलता है, use sin of a plus minus b और cos of a plus minus b फॉर्मूला। तो हमने cos of a minus b का फॉर्मूला यूज किया प्रॉब्लम में। अभी हम प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन अप्लाई करेंगे, वी नो द प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट स्टेप में पहले प्रॉपर्टी लिख देता हूँ। अभी प्रॉपर्टी क्या बोलता है, प्रॉपर्टी सेज दैट cos inverse of cos x is nothing but equal to x। See, I have given you list of properties of inverse functions। So therefore, according to this property, y will be equal to what? It will be e raised to x minus alpha हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी हमने इस स्टेप के ऊपर अप्लाई किया, तब हमें ये मिला। Now we will replace the alpha angle। So how much is alpha angle? Alpha angle is tan inverse of 2/3। So write down, therefore y is equal to e raised to x minus alpha will be replaced by tan inverse of 2/3। तो जितना फंक्शन को सिंप्लीफाई करना था, सिंप्लीफिकेशन इज ऑल ओवर। नाउ वी विल डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x एंड गेट द आंसर। ओके, सो राइट डाउन, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। अभी हम थोड़ा डायरेक्टली करेंगे, स्टेप वाइज वाला प्रोसीजर हमने बहुत बार ऑलरेडी कर चुके हैं। तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज नथिंग बट dy by dx। e raised to x का डेरिवेटिव इज e raised to x itself minus tan inverse of 2/3 is a constant and tan inverse of 2/3 का डेरिवेटिव is nothing but 0। So the final answer is nothing but e raised to x and that is the end of the problem। That's it, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो dy by dx is nothing but e raised to x। Problem is over। See, I'll repeat the procedure student once again for you what we have done। इसको हमें डिफरेंशिएट करना था। Now obviously differentiating this by the previous 3 types is not possible। हमने टाइप A, टाइप B एंड टाइप C ऑलरेडी कर चुके हैं। तीनों टाइप से इसका डेरिवेटिव हम नहीं फाइंड कर सकते, इसीलिए फिर हमें नए टाइप पे आना पड़ा। So that is this type 2D we are coming on to problem। तो फिर पहले क्या ऑब्जर्व किया हमने, we split the denominator। Please remember this procedure is same for all the problems। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो करेंगे हम वो भी इसी प्रोसीजर के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा।
प्रोसीजर इज इंपॉर्टेंट नॉट प्रॉब्लम, ठीक है। तो सबसे पहले डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया, देन वी हैव टेकन दिस, इसको लेट लिया हमने 3/√13 को हमने कॉस अल्फा लिया और इसको हमने साइन अल्फा लिया। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ये चेंज हो सकता है, इसको मुझे कॉस में कन्वर्ट करना था इसीलिए ऐसा एजम्पशन किया हमने। देन वी शो दैट साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1, वहां से फिर हम tan अल्फा फाइंड करके अल्फा निकाल लेंगे। then we substitute these things over here, this whole thing gets converted in form of cos, then as per the rule says we use property of inverse function, तो हमने property of inverse function use कर लिया और फिर उसको हमने differentiate किया and then we have got the final answer. So we stick to this procedure for solving these kind of examples. इसमें cos inverse है, ध्यान यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो cos inverse आएगा या तो sin inverse आएगा, दो ही ऑप्शंस अवेलेबल है। ओके चलो रे डाउन, या उनके रेसिप्रोकल आ सकते हैं, यहाँ पे सेक इनवर्स करके देंगे तो सेक इनवर्स दिया तो इसका रेसिप्रोकल देंगे, या फिर कोसेक इनवर्स भी दे सकते हैं। तो 4 ऑप्शंस है हमारे पास। ओके चलो प्लीज नोट डाउन, देन विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल दिस इज दिस टाइप अगेन। So next question on your screen, cosec inverse, as I said it can be given cosec inverse, तो ये example दिया है। Now first of all we'll be applying the property of inverse function और इसको sin inverse पे convert कर लेंगे, ठीक है। चलो write down solution, again it is for 3 marks। लिखो let y is equal to cosec inverse gets converted to sin inverse, तो sin inverse of what, so 6 into sin of 2 raised to x minus 8 into cos of 2 raised to x completely divided by 10, ये फर्स्ट स्टेप है। अब ये कहाँ से आया, तो इट इज बाय प्रॉपर्टी। कौन सा प्रॉपर्टी अप्लाई किया हमने, cosec इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट इक्वल टू होता है sin इनवर्स ऑफ 1/x। दिस प्रॉपर्टी वी हैव अप्लाइड ओवर हियर फर्स्ट स्टेप में। चाहिए तो आप नोट डाउन कर लो प्रॉपर्टी आपके रेफरेंस के लिए। ओके नाउ व्हाट वी डू, डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 10, so therefore y is further equal to sin inverse of, this will give us 6/10 into sin of 2 raised to x minus 8/10 into cos of 2 raised to x। ठीक है, अभी हमें assumption करना है, substitution put करना है। So let's put, now can anyone tell what will we take 6/10 as? 6/10 को क्या लेंगे हम, cos alpha। Absolutely, 6/10 will be taken as cos alpha and 8/10 will be taken as sin alpha। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो हमारी कोशिश क्या रहेगी कि ये जो ब्रैकेट है वो साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज अवर बेसिक आइडिया। तो साइन इनवर्स है तो ये ब्रैकेट को साइन में कन्वर्ट करना है, कॉस इनवर्स है तो कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली वी डू दिस, देयरफॉर नाउ वी कैन राइट डाउन, आगे लिखो आप, नाउ सब देखिए इससे कंटिन्यू करते हैं। नाउ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, ये 1 आना चाहिए, देख लेते हैं आएगा 100%, तो इसका स्क्वायर, तो दैट इज नथिंग बट 64/100 प्लस इसका स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 36/100 एंड दैट्स नथिंग बट इक्वल टू 1। So therefore from here tan alpha, so tan alpha is sin alpha upon cos alpha, so that is nothing but 8/6, 8/6 को सिंप्लीफाई करेंगे तो that's nothing but 4/3, so therefore angle alpha will be tan inverse of 4/3 हो जाएगा, ये हमारा एंगल अल्फा है। दिस प्रोसीजर इज कंपल्सरी एग्जाम में, इफ यू डोंट राइट डाउन दिस you may lose your marks, please do remember that।
बस अभी रिप्लेस करो, 6/10 की जगह पे cos अल्फा डालो और 8/10 की जगह पे sin अल्फा डालो and do the conversion and proceed ahead. तो क्या मिलेगा हमें? Therefore next step, therefore y is further equal to sin inverse of, ठीक है, थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं हम इसको, sin of 2 raised to x, sin of 2 raised to x remaining same, 6/10 will be written as cos alpha minus 8/10, हाँ तो पहले इंटू कॉस ऑफ 2 रेज टू एक्स लिख लेते हैं एंड 8/10 विल बी रिप्लेस्ड बाय साइन अल्फा। रीअरेंज करके लिख दिया हमने, दिस इज अलाउड। इतना आप डायरेक्ट लिखोगे तो चलता है एग्जाम में। दैट्स इट, नाउ अप्लाई द फॉर्मूला, द होल थिंग इज नथिंग बट साइन ऑफ a minus b, so therefore y is nothing but equal to sin inverse of, this will be nothing but sin of 2 raised to x minus alpha, sin of a minus b, sin a cos b minus cos a sin b, sin of a minus b होता है, we all know that, and by the property of inverse function this is going to become nothing but 2 raised to x minus alpha हो जाएगा। Which property have we applied? So you know that we have applied the property sin inverse of is equal to x, ये प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर रहे हैं। तो रिप्लेस अल्फा एंड देन डिफरेंशिएट, तो y is equal to 2 raised to x minus alpha will be replaced by tan inverse of 4/3। चलो डिफरेंशिएट एंड टेल मी द फाइनल आंसर। 2 raised to x into log 2। यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x इज dy/dx, 2 रेज टू x का जो डेरिवेटिव है वो है 2 रेज टू x इंटू log 2, tan इनवर्स ऑफ 4/3 इज अ कांस्टेंट, तो उसका डेरिवेटिव 0 है और यही हमारा फाइनल आंसर है। वो 0 लिखने की भी जरूरत नहीं है, नॉट कंपल्सरी, हो गया बस, प्रॉब्लम इज ओवर, दैट्स इट। तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर, फंडा एकदम माइंड में आप क्लियर रखो कि सबसे पहले ये दोनों में से कोई एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स फंक्शन अप्लाई करना है और फिर उसके बाद डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। प्लीज रिमेंबर, ये हेडिंग मैंने आपके रेफरेंस के लिए लिखा हुआ है, एग्जाम में ऐसा लिखा हुआ नहीं आएगा। ऑल द 4 टाइप्स दैट वी डिड, A B C D, ठीक है, इट विल बी ओनली रिटर्न दिस हेडिंग, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो बहुत सारे स्टूडेंट के क्वेश्चन में ना ये दिमाग चलते रहता है कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि टाइप ए से करना है बी से करना है। तो ऑब्जर्वेशन एंड प्रैक्टिस, दीज टू थिंग्स आर गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप ध्यान आ जाएगा कि अरे हाँ ये टाइप नहीं, ये है, ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। दैट इज मेन थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay, so next question students, I have written on the board that you are going to do and it's an extra problem. ये extra problem ही आप करोगे। Okay, one more thing before you move on to the next problem, आप start करो। Now just have a look over here in this problem। ये जो example है ना students, इसमें sin of a minus b का फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अभी आप पहले ये टर्म लिखोगे और उसके बाद ये टर्म लिखोगे तो अल्फा माइनस 2 रेज टू एक्स मिलेगा। तो इन दैट केस यू विल बी गेटिंग ओवर हियर अल्फा माइनस 2 रेज टू एक्स, और अगर आपने वैसा रीअरेंज किया तो आपको नेगेटिव आंसर मिलेगा। तो पहले हम फंक्शन लिखते हैं, उसके बाद एंगल लिखते हैं। जनरली व्हेन वी राइट डाउन साइन ऑफ a प्लस बी या साइन ऑफ a माइनस बी, कोई भी फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं तो पहले फंक्शन को लिखते हैं फिर एंगल को लिखते हैं, बट ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं है। तो इवन इफ यू गेट अ नेगेटिव साइन ओवर हियर, अगर आपको नेगेटिव आंसर भी आता है तो भी चलेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज आई रिकलेक्टेड, अगर टेक्स्ट बुक में माइनस आंसर होगा तो माइनस आंसर भी सही है, बट जनरली पहले प्लस होता है, पहले हम फंक्शन को लिखते हैं फिर एंगल को लिखते हैं, बट उल्टा किया तो भी चलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट डूइंग दिस प्रॉब्लम, आई एम गिविंग यू टाइम। एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। अभी इंस्टेड ऑफ नंबर्स मैंने ए बी और वो दिया हुआ है, यू नीड नॉट टू गेट कंफ्यूज एट ऑल, पूरा सेम प्रोसीजर है।
हो गया कि प्लीज लेट मी नो। ओके चलो, तो लेट्स सी द सॉल्यूशन। अब आपके स्टेप्स चेक करो, शॉर्ट में लिखूंगा मैं, आई विल नॉट राइट डाउन ऑल द स्टेप्स दैट आर इन्वॉल्व। तो सॉल्यूशन जब हम लिखेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट डाउन y इज इक्वल टू साइन इनवर्स। उसके बाद डिनोमिनेटर स्प्लिट हो जाएगा, तो जब हम डिनोमिनेटर स्प्लिट करेंगे तो व्हाट विल दिस बी, साइन इनवर्स ऑफ, ठीक है, a बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर into cos x minus b by under root of a square plus b square into sin x. ठीक है, नाउ टेल मी व्हाट यू हैव टेकन। इसको क्या लिया, a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को व्हाट हैव यू टेकन, sin alpha. एब्सोल्युटली। तो इसको हमने ले लिया, ये जो a अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है वो हमने ले लिया साइन अल्फा, थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, और इसको हम ले लेंगे cos अल्फा। ठीक है, नाउ एंड ऑब्वियसली वील हैव टू शो दैट sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। तो वो आप शो कर देना, वेरी इजी। विल हैव टू शो sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा, तो इसका स्क्वायर, so that's nothing but a square upon a square plus b square, और इसका स्क्वायर इज b square upon a square plus b square, and obviously that's equal to 1. So from here we will be finding out tan alpha. So tan alpha is nothing but sin alpha upon cos alpha, so it will be a by b, and therefore alpha will be equal to tan inverse of a by b हो जाएगा। ठीक है, now when we replace this thing, what will y become? So y is equal to sin inverse of, अब मैं थोड़ा डायरेक्टली लिख रहा हूँ, sin alpha cos x minus cos alpha sin x। ठीक है, तो sin a cos b minus cos a sin b is nothing but sin of a minus b, तो ये हो जाएगा अल्फा माइनस एक्स। अब ये जो अरेंजमेंट है इसमें हमें अल्फा माइनस एक्स मिल रहा है, ठीक है, डजेंट मैटर, क्योंकि इसको हमने अल्फा ले लिया, साइन अल्फा लिया, और यहाँ पे cos x प्रेजेंट है, ठीक है ना, और इसको हमें कन्वर्ट करना है साइन में। So therefore, what do we get after this? Y is further equal to, this is going to become alpha minus x. So I have told you in the example itself कि ऐसा कुछ compulsory नहीं है कि x minus alpha ही मिलना चाहिए या alpha minus x ही लिखना है, ऐसा कुछ भी compulsory नहीं है। According to the situation, you can do the thing. So therefore, y is equal to, alpha will be replaced by tan inverse of a by b minus x. So therefore, dy by dx is nothing but equal to -1. Check. Have you got the answer -1, everyone? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Chalo. Very good. Problem is over. Okay. Now, students, as you can see the screen, this table of expression and substitution, तो ये हमारा type 2E हो जाएगा, that we are going to do now. तो expression देखो आप, and the substitution in front of it, that we have already revised earlier. So just go through the all expressions and all the substitutions, and we are going to come across this in the problem. Under root of 1 minus x square रहेगा, so we put x is equal to sin theta or cos theta. Under root of x square minus 1 रहेगा, तो we put sec theta or cosec theta. Under root of 1 plus x square रहेगा, तो we put x is equal to tan theta or cot theta. 2x upon 1 plus x square, 2x upon 1 minus x square, and 1 minus x square upon 1 plus x square रहेगा, तो we put x is equal to tan theta. Because of all the trigonometric formulas and the fundamental identities, ये सारे substitutions work होते हैं students. Please do remember that. Then 7th one, 1 minus 2x square रहेगा, तो we put x is equal to sin theta, because it is going to become the formula for cos 2 theta.
2x² -1 रहेगा तो x इज इक्वल टू कॉस थीटा डालेंगे क्योंकि वो cos टू थीटा का फॉर्मूला बनता है। 2x इंटू √1 - x² में x इज इक्वल टू साइन थीटा या x इज इक्वल टू कॉस थीटा भी डाल सकते हैं हम वहां पे, तो वो साइन टू थीटा का फॉर्मूला बनता है। 3x - 4x³ में x इज इक्वल टू साइन थीटा डालेंगे तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। 4x³ - 3x में x इज इक्वल टू कॉस थीटा डालेंगे तो cos 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। Then the 12th one we put x is equal to tan theta as the substitution, तो tan 3 theta का फॉर्मूला बन जाता है वो। Then the 13th expression we put x is equal to cos theta or cos 2 theta, either of them. Then 14, 15, 16 and 17 में वही सब a वाले आ जाते हैं। √(a² - x² रहेगा तो a sin theta और a cos theta, and similarly for the others also। और नीचे देखो वो जो कलर बॉक्स है उसमें वो सारे फॉर्मूलेज लिखे हैं that are applicable on the substitutions। Okay, so this table is going to play a very important role not in differentiation, not only in differentiation but integration topic में भी ये अपने को काम आने वाला है हाँ आगे जाके। So right now everything is dependent on this expression table, then properties of inverse function, अपने को function को simplify करना है। So just go through this, and you have already written this table earlier।